Hello students, good morning to everyone. This is Neetu ma'am and welcome you all to the DSA Education Online System. Now, today's class is with a different mood. Different mood, a different form. Yeah, a different form. How it is different from the earlier classes? Today I feel immensely proud to launch the digital classroom pattern specially designed for you all. Now, I'll be teaching you on the digital board, that means the interactive board, with the slides, with the colorful pictures, so that the journey of education will be more interesting. Now, I promise you all, you will enjoy studying. And English, as you all know, is a very interesting language and you all will enjoy studying English on the digital board. Now, as I have started pronouns, but today I am again giving you a brief introduction of pronouns with its type but on the interactive board. So let's start. Are you ready? Okay, let's start pronoun and its types. What are pronouns? हमने कर लिया है, but still again an introduction to pronouns. Pronouns are used in place of nouns. जहां जहां सेंटेंस में nouns लगते हैं उनकी जगह हम pronouns लगाते हैं. अब अगर noun एक लड़के का नाम है तो उसके लिए लगेगा pronoun he. अगर noun एक लड़की का नाम है तो उसके लिए लगेगा pronoun she. अगर noun मैं अपने लिए यूज करना चाहूं तो उसके लिए लगेगा I. अगर pronoun हम सबके लिए तो we. Okay, now we will move forward to the next thing. Now see, what is pronoun? या pronoun कैसे यूज होते हैं? See, अगर मैंने यहाँ लिखा, see Sam is sick. I have taken an imaginary character. एक लड़का है Sam. Sam is a noun. Sam is a noun. Check it out. Sam is a noun. Now Sam called doctors. Sam's mother is worried. Sam's mother called Sam's uncle. Sam's uncle is a surgeon. इसमें एक चीज ऑब्जर्व की आपने, एक चीज ऑब्जर्व की क्या? बार बार सैम का नाम आ रहा है, बहुत मोनोटोनस हो रहा है, एक ही नाम बार बार. तो क्या हम सैम के लिए कुछ और वर्ड यूज कर सकते हैं? यस, हमने अभी डिस्कस किया, अगर कोई लड़का है उसके लिए कोई प्रोनाउन यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे? ही. तो सैम के लिए क्या यूज होगा? ही. Let's check it out. Now see, ये Sam noun, कोई भी सेंटेंस नाउन से स्टार्ट होता है, हमने सबसे पहले Sam लिख दिया. अब हमने नेक्स्ट सेंटेंस में he लिखा. ये he किसके लिए है? ये he is Sam के लिए. Okay, he called doctors. He मतलब Sam. ना उसके बाद his mother, Sam's mother. See, हमने possessive nouns किया था, remember? Sam's mother means Sam की माँ. Sam की माँ. तो अब ये तो हमने noun में s लगा दिया. Noun में s लगा दिया तो बन गया Sam की. अब अगर मुझे Sam की जगह pronoun यूज करना है तो अगर ये possessive noun है तो मुझे pronoun भी कौन सा यूज करना है? possessive pronoun. possessive pronoun जिसमें मीनिंग ये आए, जैसे ये आ रहा है सैम की, तो अगर मुझे pronoun यूज करना है तो उसकी. सैम की मॉम, उसकी मॉम. तो सी, his is used for Sam's. यहाँ apostrophe s लगा है, अब यहाँ his ही क्यों लगा? सैम के लिए जो pronoun यूज होगा वो है he. मेल जेंडर सिंगुलर pronoun he. मेल जेंडर possessive pronoun his. याद रखना ये. Now his mother is worried. Now she. अब ये she किसके लिए यूज है? See, Sam's mother. Sam's mother के लिए she यूज है. फीमेल जेंडर सिंगुलर pronoun she. She called his uncle. अब his means Sam's uncle. Again see, Sam's के लिए his यूज किया था, यहाँ सैम की माँ, यहाँ सैम के अंकल.
his, see his. Sam's uncle is a surgeon. अब ये Sam's uncle बार यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, तो 2 बार Sam's uncle ना करके Sam's uncle कौन है? Sam के अंकल एक सर्जन है. Sam के अंकल एक सर्जन है. क्या रिलेशन बता रहे हैं Sam के अंकल का सर्जन प्रोफेशन से? That means she called his uncle, कौन? Sam के अंकल, जो कि, who means जो कि एक सर्जन है. तो I hope you have understood this. Again I am repeating, he male gender singular pronoun, his possessive pronoun, male gender possessive pronoun, then she female gender singular pronoun, his again male gender possessive pronoun, and who is, as you all know, मैंने ये बताया है आपको, relative pronoun. Who is a relative pronoun, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से रिलेशन बताते हैं. तो who आपको रिलेशन बता रहे हैं सैम्स अंकल का एक सर्जन से. दैट मीन्स सैम के अंकल ही सर्जन हैं, जो कि एक सर्जन है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ द नेक्स्ट थिंग अबाउट प्रोनाउन. नाउ सी, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ one or more nouns. See, one or more nouns. Pronoun एक से ज्यादा nouns की भी जगह ले सकता है. कैसे? Pronouns can be singular or plural. कैसा हो सकता है? Pronoun singular और plural हो सकते हैं? Yes. कैसे हो सकता है? See, pronouns और nouns, pronoun use ही noun की जगह होते हैं. जैसे noun के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होते हैं, वैसे ही प्रोनाउन के भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होते हैं. जैसे अगर मैं बोलूं बॉय, बॉय इज अ नाउन, उसका प्लूरल प्रोनाउन, उसका प्लूरल बॉयज. वैसे ही अगर बॉय है, बॉय की जगह प्रोनाउन यूज करना है तो ही, और अगर बॉयज की जगह प्रोनाउन यूज करना है तो दे. तो प्रोनाउन का भी प्लूरल बन गया. Yes, check it out. Now see, the word or phrase replaced by pronoun, ये याद रखना, replaced by a pronoun is called an antecedent. Antecedent मतलब जिस वर्ड को प्रोनाउन रिप्लेस करेगा, जिस वर्ड को प्रोनाउन रिप्लेस करेगा, उस वर्ड को बोलेंगे एंटीसीडेंट. जैसे हमने अभी एग्जाम्पल किया सैम वाला. सैम नाउन है, तो सैम को अगर प्रोनाउन रिप्लेस कर रहा है तो सैम एंटीसीडेंट है. चेक इट आउट. सी, राम इज अ गुड स्टूडेंट. यहां राम नाउन है, उसकी जगह प्रोनाउन लगा यहां पर ही. ही किसके लिए लगा है? ही किसके लिए लगा है? राम के लिए. तो ही प्रोनाउन किसका है? राम का. तो राम इज नोन एज एंटीसीडेंट. राम इज नोन एज एंटीसीडेंट. राम को प्रोनाउन रिप्लेस करेगा ही, तो ही प्रोनाउन इज एंटीसीडेंट ऑफ राम. ओके, वन मोर. सी देख, ही इज अ प्रोनाउन दैट रिफर्स टू एंटीसीडेंट राम. ही किसके लिए यूज है? राम के लिए यूज है. तो राम एंटीसीडेंट है जिसके लिए प्रोनाउन यूज होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट. नाउ सी, दीज आर प्रोनाउंस. दे, मी, व्हाट, ही, योर्स, देमसेल्व्स, हिम, दोज. ये मिक्स हैं. अब कैसे कैसे इसको हम डिवाइड करेंगे? सब्जेक्ट की जगह कौन सा प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट की जगह कौन सा प्रोनाउन, सिंगुलर की जगह कौन सा, प्लूरल के लिए कौन सा. नो नीड टू कंफ्यूज व्हेन आई एम हियर. लेट्स चेक इट आउट. नाउ सी, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. नंबर फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो पर्सन की जगह लगते हैं, जो पर्सन की जगह लगेंगे, जो सब्जेक्ट की जगह लगेंगे. पर्सनल प्रोनाउन दैट मीन्स जो सिर्फ पर्सन्स के लिए ही यूज होंगे. नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो डेमो देने के लिए, दिखाने के लिए, दिस, दैट, दोज, दीज, दैट आर
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन से? जो क्वेश्चन पूछने के लिए, जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए यूज होते हैं, वो होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? सीधा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेशन बताते हैं सब्जेक्ट का सेंटेंस से। रिमेंबर हमने अभी सेंटेंस किया, राम्स अंकल हु इज अ सर्जन, हु इज अ सर्जन, राम के अंकल जो एक सर्जन है। अब यहाँ पर हु कौन के लिए नहीं आ रहा, हु जो के लिए आ रहा है। तो जब भी सेंटेंस के मिड में हु, हुम, हुज ये वर्ड्स यूज हो, वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जो आपको रिलेशन बताते हैं। नेक्स्ट इज indefinite pronoun. Indefinite pronoun when the number of the subject is not known, when the clear identity of the subject is not known. Anyone come here, someone came here. तो आपको ये नहीं पता कौन आया है। Any one of you come here. कोई भी एक आ जाओ, कोई भी एक। That means आप नहीं बता रहे, स्पेसिफिक नहीं कर रहे। When the number and the identity of the subject is not specific, then indefinite pronouns are used. Next is reflexive or intensive pronouns. Reflexive pronoun use होते हैं when the subject and the object of the sentence are same. Subject and object of the sentence are same. ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा, अगर मैं बोलूं I did it myself, सब्जेक्ट कौन है? I. वर्ब क्या है? did. myself, myself रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। myself लगा है ऑब्जेक्ट की जगह पर, ये मैंने खुद किया। कितने लोग हैं सेंटेंस में? एक ही। ये मैंने खुद किया। तो when subject and object of the sentence are same, we use reflexive pronoun. Now reciprocal pronoun, रेसिप्रोकेट करना, एक दूसरे के रेसिप्रोकेट करना। रेसिप्रोकेट होता ही तब है when the actions are done between two people or two units, तभी वो रेसिप्रोकेट होगा। लेन देन, आपस में डीलिंग, इधर इधर दोनों का लेन देन। द कपल लव ईच अदर, तो ईच अदर इज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। द बॉयज हेल्प वन अनदर, दैट मीन्स आपस में। तो ईच अदर, वन अनदर, that means reciprocal pronoun. Now no need to worry about this. I'll discuss all the pronoun types in detail. Let's check it out. Number 1, personal pronoun. Number 1, personal pronoun. अब जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ नाम में ही दिख रहा है पर्सन, तो ये प्रोनाउन यूज ही पर्सन्स के लिए होंगे, सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के लिए। कैसे? Let's check it out. Now see. Personal pronouns are also used as subject pronoun. Personal pronoun subject pronouns के लिए use होते हैं। Now see here. आप लोगों को ये मैंने बताया है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। Subject plus verb plus object. Now see. Rahul plays cricket. Rahul plays cricket में राहुल सब्जेक्ट है। राहुल कहाँ लगा है? सब्जेक्ट की जगह पर। अब जब राहुल सब्जेक्ट की जगह लगा है और अगर मुझे राहुल के लिए कोई प्रोनाउन यूज करना है, तो वो कौन सा होगा बेटा? मेल जेंडर सिंगुलर प्रोनाउन। क्यों मेल जेंडर सिंगुलर प्रोनाउन? बिकॉज राहुल एक मेल है और सिंगुलर है। तो इसके लिए मैं क्या यूज कर सकती हूँ? ही यूज होगा इसके लिए। दैट मीन्स दिस इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन। That means he is a subjective pronoun
और पर्सनल प्रोनाउन। तो जो भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो पर्सन के लिए लगते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की जगह लगेंगे। दिस इज अ ट्रिक टू बी रिमेम्बर्ड, ये हमेशा याद रखना। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह लगते हैं, सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में लगता है। ये सारे प्रोनाउंस हमेशा और हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में ही लगेंगे, एंडिंग में नहीं, बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर सब्जेक्ट। ओके, नाउ लेट्स चेक सम मोर एग्जांपल्स ऑफ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब फर्स्ट पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन क्या होता है? आई, ये याद रखना। सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन ही, शी और इट। ही मेल जेंडर प्रोनाउन, शी फीमेल जेंडर प्रोनाउन। अब इट किसके लिए यूज होता है? इट यूज होता है, आप लोग को पता है, मैंने बताया है, इट यूज होता है न्यूटर जेंडर, नॉन लिविंग थिंग्स, लोअर एनिमल्स, इन सब के लिए यूज होगा इट। अब ये तो बात है सिंगुलर की। अगर प्लूरल की बात होगी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन वी, सेकेंड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन यू, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन दे। अब याद रखने वाली बात ये है बेटा, ये जितने भी प्रोनाउंस हैं ये हमेशा और हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज होंगे, एंडिंग में नहीं। दिस इज अ रूल टू बी रिमेम्बर्ड। आई एम रिपीटिंग, ये जितने भी प्रोनाउंस हैं ये सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के लिए लगते हैं। ये सारे प्रोनाउन सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ बिगिनिंग में आएंगे, इनको एंडिंग में यूज करना एरर है। तो ये सब के सब बिगिनिंग में आएंगे। द सेंटेंस विल स्टार्ट विद दीज प्रोनाउंस। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। और ये बिगिनिंग में आते हैं, सब्जेक्ट की जगह आते हैं, चेक इट आउट। इसलिए इनको सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव प्रोनाउन होते क्या हैं? पोजेसिव प्रोनाउन पोजेसिव नाउन्स की जगह लेते हैं। चेक इट आउट। पोजेसिव नाउन्स क्या होते हैं? वो नाउन जो अपनी ओनरशिप बता रहे हैं किसी चीज पे। अगर मैं बोलूं दिस इज राम्स कार, ये राम की कार है। अब अगर मुझे इस पोजेसिव नाउन को पोजेसिव प्रोनाउन से रिप्लेस करना है, आप लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, बताओ क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा his. This is his car. This is his car. See, this is his car. Now check it out. अगर यहाँ है this is Ram's car, तो राम में एपोस्ट्रोफी कॉमा है, s है, like this, तो ये हो गई this is Ram's car. ये राम की कार है। अब अगर मैंने ये लिखा this is his car, ये उसकी कार है, उसकी। तो ये आपको याद है, जब भी किसी नाउन में पोजेसिव एस लगता है, एपोस्ट्रोफी एस लगता है, हिंदी में क्या आता है? की, का, ये के। तो जब मैं यहां बोल रही हूं दिस इज राम्स कार, तो ये राम की कार है। और जब मैं ये बोल रही हूं दिस इज हिज कार, ये उसकी कार है। अगेन आया की, दैट मीन्स ये पोजेसिव केस है, ये पोजेसिव केस है। नाउ वन थिंग टू बी रिमेम्बर्ड, ये हिज कहां लगा है? ऑब्जेक्ट या नाउन से पहले, जिसपे पोजेसिव बताया जा रहा है, जिसपे ओनरशिप बताया जा रहा है। दिस इज हिज कार, कार किसकी है? उसकी। तो हिज कहां आएगा? ऑब्जेक्ट या नाउन से पहले। ओके, नाउ चेक आउट द नेक्स्ट थिंग। नाउ फर्स्ट पर्सन जैसे हमने आई किया था, तो अगर आई के लिए पोजेसिव प्रोनाउन यूज करना है माय और माइन, माय और माइन। अब इसका डिफरेंस कैसे होगा? लेट्स चेक इट आउट। नाउ पे अटेंशन, जब हम माय यूज कर रहे हैं और माइन, इनका डिफरेंस कैसे आएगा? माय जैसे मैंने आपको बताया दिस इज हिज कार, हिज वर्ड कहां आया? कार से पहले। वैसे ही दिस इज माय कार, ये पोजेसिव प्रोनाउन है
जो कि ऑब्जेक्ट से पहले लगा है, ऑब्जेक्ट से पहले या नाउन से पहले। नाउ दिस इज ऑब्जेक्ट ऑल्सो, और ऑब्जेक्ट की जगह पर सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन यूज होते हैं। कार एक नाउन है जो ऑब्जेक्ट की जगह है। माई कहाँ लगा है? ऑब्जेक्ट से पहले, नाउन से पहले। अब अगर आपको माइन यूज करना है, दोनों सेंटेंस करेक्ट है, दोनों सेंटेंस करेक्ट है, बट सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच का लोकेशन चेंज है। चेक इट आउट। दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन। माइन कहां लगा है? ऑब्जेक्ट की जगह पर। दिस इज द डिफरेंस। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो दिस माइन कार इज, या दिस इज माइन कार, दिस इज रॉन्ग। अगर आपको माइन यूज करना है तो वो ऑब्जेक्ट की जगह पर एंडिंग में आएगा। अगर आपको माई यूज करना है तो वो ऑब्जेक्ट से पहले आएगा। गॉट द डिफरेंस? अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपको माई, योर, हिज सर्च करना है तो वो कार से पहले, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट से पहले आएगा। लेकिन अगर आपको माइन, योर्स ये यूज करना है तो वो ऑब्जेक्ट की जगह पर, दैट मीन्स सेंटेंस के एंडिंग में ही आएगा। ओके, नाउ ये तो थे सिंगुलर, नाउ ये प्लूरल। अगेन वन मोर एग्जांपल फॉर प्लूरल प्रोनाउन। Now check out the difference. This is our house. This is our house. Our क्या है यहाँ पर? Our possessive pronoun है जो कि ऑब्जेक्ट की जगह नाउन है उसके पहले लगा है। जैसे हमने किया था this is my car, this is our house, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। अब मैं अगर इसको ऐसा बोल सकती हूँ this house is ours, ये घर हमारा है। yes, डील वही है। अगर आप आर्स यूज कर रहे हैं तो वो सेंटेंस के एंडिंग में आएगा। अगर आप आर यूज कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट से पहले आएगा। दिस थिंग टू बी रिमेम्बर्ड। ये समझ में आ गया तो कुछ गलती नहीं होगी। नाउ दिस इज आवर हाउस, दिस इज योर हाउस। मैं यहाँ योर भी लिख सकती हूँ। दिस इज योर हाउस, दिस हाउस इज योर्स। एक ही बात। दिस इज देयर हाउस, दिस हाउस इज देयर्स। तो जब भी ये वर्ड्स आएंगे, जब भी ये वर्ड्स आएंगे, ये एंडिंग में आएंगे। जब भी ये वर्ड्स आएंगे, इनके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। दिस इज देयर हाउस, ये एंडिंग में आएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन। नाउ लेट्स मूव। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पर एग्जाम में एरर आते हैं जिस टॉपिक से रिलेटेड। दिस इज अ हॉट फेवरेट ऑफ एग्जामिनर्स फॉर द टॉपिक्स टू बी गिवन इन द एग्जाम। लेट्स चेक इट आउट। नाउ रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव मीन्स जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मैं अपने आप को मिरर में देख रही हूं तो क्या रिफ्लेक्ट होगा? मेरी पर्सनालिटी। बस यही याद रखना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज ही तब होते हैं जब सब्जेक्ट ही अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और वो कैसे होगा? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर एक ही पर्सन की बात हो रही है। वो कैसे होगा? चेक इट आउट। नाउ सी, राहुल हेल्प्ड हिम। कितने लोग हैं यहाँ पर? कितने लोग हैं? एक राहुल जो सब्जेक्ट की जगह लगा है, एक हिम जो ऑब्जेक्ट की जगह लगा है, एक हिम जो ऑब्जेक्ट की जगह लगा है। कैसे पता चल रहा है दो लोग हैं? ये राहुल और ये हिम। नो मैटर हिम एक मेल जेंडर प्रोनाउन है, बट हमें समझ रहा है कि वो दूसरा इंसान है, वो राहुल नहीं है। राहुल ने उसकी हेल्प की, राहुल हेल्प्ड हिम। हिम जो कि ऑब्जेक्ट की जगह लगा है वो एक दूसरा इंसान है। यहां दो लोग हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ चेक इट आउट। दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, दिस इज ऑब्जेक्ट। राहुल हेल्प्ड हिमसेल्फ। यहां कितने लोग हैं? राहुल हेल्प्ड हिमसेल्फ। हिमसेल्फ मतलब खुद की। राहुल ने
खुद की हेल्प की। अब यहाँ हिम लगा है मतलब मेल जेंडर, ये किसके लिए लगा है? राहुल के लिए। राहुल ने खुद की हेल्प की। नाउ दिस इज द थिंग टू बी अंडरस्टूड। अब ध्यान देना, जब भी ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द रिसीवर ऑफ द वर्ब, इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। ये एक्शन किसके लिए हुआ है? ये एक्शन किसके लिए हुआ है? ये ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट व्हेन बिकम्स द रिसीवर ऑफ द एक्शन हु इज सब्जेक्ट ओनली। ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हैं। यहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग थे। ऑब्जेक्ट हु इज द रिसीवर इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी राहुल से, यहां पर दोनों सेम है। तो जब सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाकर एक्शन रिसीव कर रहा है, तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होंगे। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा LF में सिंगुलर से एंड होते हैं और VES से प्लूरल में एंड होते हैं। चेक इट आउट। नाउ सी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई था, याद है आपको? तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। प्लूरल में फर्स्ट पर्सन वी, तो उसके लिए प्लूरल प्रोनाउन आवरसेल्व्स। याद रखने वाली बात है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर में ELF से एंड होंगे और प्लूरल में ELVES से एंड होंगे। अब एक और चीज जो याद रखना है बेटा, वो भूलना नहीं, ये सारे प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के एंडिंग में ही यूज होंगे, कभी भी ये बिगिनिंग में यूज नहीं होते। अब आप लोग गलती क्या करते हो? रिमेंबर दिस, माई सेल्फ। Whenever you give the introduction, what you say? Myself so and so. This is wrong English. Myself कभी भी grammatically sentence के starting में नहीं आता, बट आप लोग बोलते समय बहुत बार गलत बोलते हो। आपने सुना है कई बार कई लोग बोलते हैं myself so and so. No, this is wrong. Myself कभी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में नहीं आता। Now, as you have studied recently, सेंटेंस के बिगिनिंग में क्या आएगा? I. Myself कब आएगा? एंडिंग में। I wrote this myself, मतलब ये अब they enjoyed themselves, उन्होंने अपने आप enjoy कर लिया। She went there herself, वो खुद ही वहां चली गई। तो जब भी सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट हो और वो ही अपने ऊपर एक्शन रिसीव कर रहे हो, देन वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू बी रिमेंबर्ड, हिज सेल्फ। नाउ हिज पोजेसिव प्रोनाउन है, रिमेंबर हमने अभी किया था, दिस इज हिज कार, दिस इज हिज कार। तो हिज पोजेसिव प्रोनाउन है, उसमें सेल्फ कभी भी नहीं लगेगा। वैसे ही देयर पोजेसिव प्रोनाउन है, दिस इज देयर पेन, ये उनका पेन है। तो जो भी पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं उनमें सेल्फ और सेल्फ्स नहीं लगता है। गॉट दिस? अब कभी भी नहीं बोलना दिस इज हिज सेल्फ, और माई सेल्फ से तो सेंटेंस स्टार्ट करना ही नहीं, वरना आई गिव यू वन, तो कभी भी नहीं। माई सेल्फ रॉन्ग इंग्लिश, माई सेल्फ सो एंड सो, माई सेल्फ ये। अपना इंट्रोडक्शन देते समय माई सेल्फ से कभी स्टार्ट नहीं करना, दिस इज रॉन्ग इंग्लिश। ओके, नाउ नेक्स्ट। नाउ सी, इजी थिंग, आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है, आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के लिए लगा है। सी, ये सारे प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह लगते हैं, ये सारे प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह लगते हैं, ये हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में आएंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह लग रहे हैं और एक पर्सन के लिए यूज होंगे। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये हमेशा हमेशा और हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में। भूलना नहीं, जब भी ये प्रोनाउन होंगे
ये सेंटेंस के बिगिनिंग में लगेंगे। कभी भी कोई भी सेंटेंस इन पे एंड नहीं होगा। ओके, तो these pronouns will be used at the place of subject and they are used in the beginning of the sentence. याद रखना ये चीज। Next thing है object pronouns. Now object. Now see one more thing. ये सारे प्रोनाउन लगेंगे सब्जेक्ट की जगह पर। किसकी जगह पर? सब्जेक्ट की जगह पर। ये सारे हैं, चेक आउट दिस इज ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह कहाँ है? ऑब्जेक्ट की जगह कहाँ है? एंडिंग में। एंडिंग में है, तो ये जितने भी प्रोनाउन हैं ये एंडिंग में लगेंगे, याद रखना। ये बिगिनिंग में लगेंगे, ये बिगिनिंग में लगेंगे, ये एंडिंग में लगेंगे। एग्जाम्पल, आई मेट हिम, वी मेट देम, दे मेट मी, ही मेट अस। ये सारे एंडिंग में लगते हैं, ये सारे बिगिनिंग में लगते हैं। नाउ चेक आउट दिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ लगेंगे? आपको पता है कहाँ लगेंगे? ये सारे एंडिंग में ही लगेंगे। नाउ दिस थिंग टू बी रिमेम्बर्ड, भूलना नहीं। पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ वहां यूज होंगे जहां सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर है, जहां सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर है। I did this myself. किसने किया? मैंने खुद ही किया। We enjoyed ourselves. कैसे एंजॉय किया? हमने खुद ही एंजॉय कर लिया। Yourself. You do it yourself. You do this yourself. तुम खुद ही ये करो। Themselves. They study together themselves. They enjoyed themselves. उन्होंने खुद ही पढ़ाई कर ली। Himself. He went there himself. अब यहाँ himself की जगह himself होगा। He did it himself. She did it herself. She did it herself. It happened itself. ये अपने आप ही हो गया। It happened itself. It died itself. अब इट किसके लिए डाइड है? तो लोअर एनिमल्स, छोटे जानवर। इट डाइड इटसेल्फ, इट हैपेंड इटसेल्फ। तो ये सारे एंडिंग में ही यूज होंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ द नेक्स्ट प्रोनाउन। नाउ अगेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हम कर चुके हैं, सम एग्जांपल। नाउ आई समटाइम्स टॉक टू माई सेल्फ। आई समटाइम्स टॉक टू माई सेल्फ। अब यहां पर सब्जेक्ट कितना है? I myself. मैं कभी कभी खुद से ही बात कर लेती हूँ, मैं कभी कभी खुद से ही बात कर लेती हूँ। तो बात किससे हो रही है? मुझसे ही, मुझसे बात हो रही है। मैंने आपको अभी हिंट दी थी, जब जो एक्शन हो रहा है वो रिसीव कौन कर रहा है? सब्जेक्ट। मैं खुद से ही बात कर लेती हूँ, बात का एक्शन कौन रिसीव कर रहा है? मैं खुद। तो आई एम द सब्जेक्ट and I am the receiver of the action, so I am the object. तो जब ऐसा सीन है तभी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे and see. The next example, do you ever ask yourself this question? क्या तुम खुद से कभी ये क्वेश्चन पूछते हो? कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? मैं खुद। किससे? अपने आप से। तुम खुद से क्वेश्चन पूछते हो, दैट मीन्स तुम ही क्वेश्चन पूछ रहे हो और खुद से ही पूछ रहे हो। नेक्स्ट, प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। प्लीज आप अपना खुद ही ध्यान रखिए। अगर मैं ये बोलूं, आई एम गिविंग यू दिस लेक्चर बट स्टडी योरसेल्फ, दैट मीन्स खुद ही पढ़ो। आप खुद पढ़ाई कर रहे हो, अपना ध्यान खुद रखो। नाउ नेक्स्ट, ही हर्ट हिमसेल्फ विथ अ नाइफ। उसने खुद ही अपने आप को चाकू से काट लिया। किसी ने काटा उसको? नहीं, उसने खुद ही काट लिया अपने आप को चाकू से। नेक्स्ट, शी लुक्ड एट हरसेल्फ। उसने खुद अपने आप को मिरर में देखा। मिरर में देखा उसने खुद को, अपने आप को।
नाउ द कैट लिक्ड इटसेल्फ, बिल्ली अपने आप को ही चाटे जा रही है, दूध नहीं दिया आपने उसको इसलिए वो खुद को ही चाटे जा रही है। नाउ वी विल क्लीन द रूम आवरसेल्फ, हम खुद ही अपना रूम साफ कर लेंगे। नाउ एज द मेड इज ऑन द लीव, आज बाई छुट्टी पे है तो हम खुद ही अपना रूम साफ करेंगे। दे हैड अ नाइस टाइम, दे एंजॉयड देमसेल्फ, बहुत अच्छे से उन्होंने खुद ही एंजॉय कर लिया। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउ द नेक्स्ट वन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं बेटा? जब हम किसी चीज को दिखा रहे हैं, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, दीज आर माई स्टूडेंट्स, तो दिस, दीज, ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज द फैन, दूर, वो एक पंखा है। दोज आर माई बुक्स, वो मेरी किताबें हैं। तो दैट, दोज, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फर्क क्या है? दिस सिंगुलर के लिए जो पास में है, दैट सिंगुलर के लिए जो दूर है, दीज प्लूरल के लिए जो पास में है, दोज प्लूरल के लिए जो दूर है। चेक इट आउट, सी, सिंगुलर नियर के लिए, पास के लिए दिस, और फार के लिए दैट। अगेन प्लूरल, पास के लिए दीज और दूर के लिए दोज। दिस, दीज, दैट, दोज। नाउ दिस ऑब्जेक्ट के लिए, थिंग के लिए और पर्सन, तीनों के लिए यूज होगा। दिस इज माई पेन, दिस इज योर नीतू मैम, दिस इज आवर अकेडमी। तो चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो थिंग्स हो, जो चीज पास में है उसके लिए दिस। ओके, नाउ दीज भी बहुत सारे लोगों के लिए, दीज आर माई स्टूडेंट्स, दीज आर माई बुक्स। पर्सन्स के लिए भी यूज होगा, ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज होगा और बहुत सारी चीजों के लिए भी यूज होगा। अब याद रखने वाली बात यह है, ये सब सेंटेंस में यूज कहाँ होंगे? कहाँ होंगे आप लोगों को पता है, ये सेंटेंस में हमेशा और हमेशा बिगिनिंग में यूज होंगे। दिस इज माई पेन, दैट इज माई बुक, दीज आर माई बुक्स, दोज आर माई थिंग्स। ये सब हमेशा और हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज होंगे। ओके, नाउ सी, सिंगुलर, प्लूरल। अगेन, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है, हेयर मतलब हिंदी में यहां, देयर मतलब वहां। तो जो चीज हम ये बोलते हैं, ये मेरा पेन है, ये मतलब पास में है, वो मेरा बैग है मतलब दूर है। तो ये, वो, जो पास में है दिस, जो दूर है दैट, जो पास में है पर वो एक से ज्यादा है तो दीज, जो दूर है पर वो एक से ज्यादा है दोज। दिस बुक मतलब पास में, दीज बुक्स मतलब पास में मतलब बहुत ज्यादा। ओके, चेक आउट दिस। दिस बुक, कितनी बुक है? एक। कहाँ है? मेरे हाथ के पास। नाउ दैट बुक, कितनी बुक है? एक। कहाँ है? मेरे हाथ से दूर। नाउ दीज बुक्स, कितनी बुक हैं? बहुत सारी, पर कहाँ है? मेरे हाथ के पास। दोज बुक्स कहाँ हैं? दूर, मेरे हाथ से दूर पर ज्यादा। सी, आई होप demonstrative pronouns are clear to you all. Now we will do the next. Now students, after demonstrative pronoun, the next is relative pronoun. Relative pronoun, अब relative, बहुत सुना है हमने वर्ड, ये मेरे रिलेटिव हैं। रिलेटिव क्या बताते हैं? रिलेशन। रिलेटिव कौन होते हैं? जिनसे आपका रिलेशन है। सेम थिंग, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? जो दो सेंटेंस को, जो दो क्लॉजेस को जोड़कर उनका रिलेशन बता रहे हैं। नाउ चेक इट आउट, इसमें वर्ड्स कौन से यूज होंगे? हु, whom, which, that। अब इसमें हु यूज होगा,
पर्सन के लिए, विच यूज होगा थिंग्स के लिए। चेक इट आउट। हु हमेशा हमेशा पर्सन्स के लिए यूज होगा, विच हमेशा हमेशा चीजों के लिए यूज होगा, दैट दोनों के लिए यूज होगा। अब आपको कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा कि क्या यूज करना है। चेक इट आउट। सी, ही इज द बॉय हु हेल्प मी। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हु लगा है, ये किसके लिए लगा है? ये लगा है ये बॉय के लिए। अब जब भी ये वर्ड आएंगे हु, whom, which, that, इनको जब हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, आप अगर मैं बोल रही हूं हु आर यू, हु आर यू, यहां पर हु का मतलब क्या आ रहा है? तुम कौन हो, तुम कौन हो। अब यहां कौन मीनिंग हु का इसलिए आ रहा है क्योंकि ये स्टार्टिंग में या बिगिनिंग में यूज है, क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बट अगर मैं यहां हु की बात करूं, यहां सेंटेंस के मिड में लगा है, ओके, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है। बेटा ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, वरना आप बोलोगे हु का मतलब होता है कौन, यहां हु का मतलब कौन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज जब हु सेंटेंस के बिगिनिंग में लगता है विद द क्वेश्चन मार्क इन द एंडिंग, तब हु क्वेश्चन वर्ड कहलाता है और तब वो क्वेश्चन वर्ड में हु का मतलब आएगा कौन। बट यहां पर हु सेंटेंस के बीच में लगा है, दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है और उसलिए वो रिलेशन बता रहा है दोनों के बीच में, तो वो बन जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहां हु का मतलब क्या आएगा? जो कि। सी, ही इज द बॉय, ये वो लड़का है, हु जिसने, जिसने मेरी मदद की। अब यहाँ पे हु का मतलब कौन नहीं आ रहा, हु का मतलब आ रहा है जिसने। ये वो लड़का है जिसने मेरी मदद की। Now see this, that. This is a drawing that Radha did. ये वो ड्राइंग है जो राधा ने बनाई है। यहाँ that का मतलब क्या आ रहा है? जो। अभी हमने क्या किया था डेमोन्स्ट्रेटिव में? That is my pen. वो मेरा पेन है। तब that का मतलब क्या आ रहा था? वो। क्यों वो आ रहा था? Because that सेंटेंस के बिगिनिंग में लगा था। See, that is my pen. वो मेरा पेन है। दैट अगर बिगिनिंग में लगा है उसका मीनिंग है वो। अभी यहाँ सेंटेंस के बीच में लगा है तो उसका मीनिंग क्या आ रहा है? जो। अगेन, दिस इज अ ड्राइंग, ये वो ड्राइंग है जो राधा ने बनाई है। तो ये ड्राइंग का और राधा का रिलेशन बताने वाला रिलेटिव प्रोनाउन दैट। ओके, नेक्स्ट। हु किसके लिए यूज होता है? हु यूज होगा सब्जेक्ट्स के लिए। हु यूज होगा सब्जेक्ट के लिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया, हु यूज होता है पर्सन्स के लिए। ओके, मैंने अभी आप ये चीज बताई। हु यूज होता है पर्सन्स के लिए। दिस इज द बॉय हु हेल्प मी। अब यहाँ हु किसके लिए यूज हुआ था? बॉय के लिए। सैम्स अंकल हु इज अ सर्जन। हु किसके लिए हुआ? सैम के अंकल के लिए। तो हु यूज होता है पर्सन के लिए। अब सी, यहाँ हु यूज हो रहा है सब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए। सब्जेक्ट प्रोनाउन दैट मीन्स, जैसा आपने अभी पढ़ा, सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन होते हैं? जो सब्जेक्ट के लिए लगेंगे। सब्जेक्ट कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ पर्सन। तो इनडायरेक्टली हु यूज होगा पर्सन्स के लिए। ओके, नाउ सी, रिप्लेस द सब्जेक्ट प्रोनाउंस ही, शी, वी, दे, आई। इनके लिए यूज होगा हु। जहां जहां बिगिनिंग में नाउन है या ये प्रोनाउन है, इनके साथ जुड़ेगा ही। सी, जहां सब्जेक्ट की जगह पर या तो नाउन है या सब्जेक्ट की जगह पर
he, she, we, they, I, ये सारे वर्ड्स होंगे, इन्हीं के लिए मिड में यूज होगा who। ये सारे स्टार्टिंग में होंगे, तभी इनके आगे यूज होगा who। अगर नाउन नहीं है, दैट मीन्स कोई पर्सन नहीं है, नाउन में कोई पर्सन नहीं है तो हु यूज नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट की जगह पर नाउन में कोई पर्सन है या सब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन में ये सारे वर्ड्स हैं, तभी सेंटेंस के बीच में हु यूज होगा। ये याद रखना, दिस इज द रूल, हमेशा और हमेशा याद रखना ये। नाउ सी, अब यहां देखिए, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए एक सेंटेंस दिया है मैंने, दिस इज द मैन हु ब्रोक द विंडो। अब आप बोलेंगे सब्जेक्ट की जगह पर तो मैम यहाँ दिस दिया है, सब्जेक्ट की जगह दिस दिया है, आपने बोला है सब्जेक्ट की जगह कोई पर्सन होना चाहिए या ही, शी, वी, दे होना चाहिए। सेंटेंस पढ़ो, ये दिस किसके लिए यूज है? दिस मैन के लिए यूज है। मैन क्या है? एक इंसान है, एक इंसान है मैन। ये सिर्फ सेंटेंस को बिगिन करने का एक तरीका है। दिस इज योर नीतू मैम। बात किसकी हो रही है? नीतू मैम की, एक पर्सन की। वैसे ही दिस इज द मैन, बात किसकी हो रही है? मैन की, जो कि एक सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के लिए ही हु लगेगा। दिस इज द मैन हु ब्रोक द विंडो, यही वो आदमी है जिसने खिड़की तोड़ी थी, यही वो आदमी है जिसने खिड़की तोड़ी थी। अब ये हु किसके लिए लगा है? हु इज मैन के लिए लगा है। ओके, नाउ चेक आउट द नेक्स्ट। हुज, हुज मतलब जिसकी, हुज मतलब जिसकी। सी, हुज बताता है पोजेशन और रिलेशनशिप। जब मैं बोल रही हूं हुज मतलब जिसकी, एंडिंग में क्या आ रहा है? की। ये राम की कार है, ये राम की कार है, ये उसकी कार है। तो जब भी एंडिंग में की आ रहा है वो क्या बन जाएगा? वो पोजेसिव बन जाएगा। और जब हम यूज कर रहे हैं हुज, उसका मतलब भी जिसकी। सी, शी न्यू द फैमिली, वो उस फैमिली को जानती है जिसका घर हमने खरीदा है। तो हुज मतलब जिसका या जिसकी। ओके, नाउ नेक्स्ट है whom। whom मतलब whom do you want to meet, तुम किसको मिलना चाहते हो? whom do you want to meet, तुम किसको मिलना चाहते हो। बट यहाँ whom का मतलब है जिसको, किसको नहीं, जिसको। सी, रिप्लेस द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब whom कहाँ लगेगा? एंडिंग में, सब्जेक्ट वर्ब के बाद। सी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह लगेगा whom, ऑब्जेक्ट की जगह whom। नाउ सी, द लेडी हैव फाउंड द लेडी। सी, दे हैव फाउंड द लेडी, यहाँ पे ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, दे सब्जेक्ट, हैव फाउंड वर्ब, लेडी ऑब्जेक्ट। अब अगर लेडी ऑब्जेक्ट है, whom किसके लिए लगा है? पढ़ के बताओ, whom किसके लिए लगा है? लेडी के लिए। They have found the lady whom they want to interview। यहाँ पर whom किसके लिए यूज हो रहा है? ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ who किसके लिए यूज हो रहा था? सब्जेक्ट के लिए। याद रखने वाली बात यह है, who हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज होगा, whom हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा। whom हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर whom दे के लिए नहीं लगा, whom यहाँ लेडी के लिए लगा है, जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पर है। ओके, नाउ चेक आउट द नेक्स्ट। विच चीजों के लिए यूज करते हैं? माई प्रेशियस ब्लू लैम्प, माई प्रेशियस ब्लू लैम्प। अब चेक आउट, ब्लू लैम्प क्या है? अब बताइए, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। अब विच किसके लिए लगा है? ये ब्लू लैम्प चीज के लिए। माई प्रेशियस ब्लू लैम्प विच वॉज इन द रूम वॉज ब्रोकन। तो ब्लू लैम्प एक थिंग है, एक चीज है, उसके लिए विच। नाउ नेक्स्ट, दैट द लैम्प दैट वॉज इन द रूम, द लैम्प जो रूम में था। तो दैट लोगों के लिए भी यूज होता है, दैट चीजों के लिए भी यूज होता है।
I hope you have understood this. But remember the difference between who and whom. Again I am repeating, who use होगा subject के लिए, whom use होगा object के लिए. Now comes the next interrogative pronoun. Interrogative pronoun जो क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं. क्वेश्चन पूछने के लिए हम कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? whose, which, who, whom, that. Sorry, what. ये सारे वर्ड्स ही यूज होंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में. कैसे? लेट्स चेक इट आउट. नाउ सी, दीज आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. हु, मैंने आपको बताया हु यूज होता है, हु यूज होता है पर्सन के लिए, हु यूज होता है पर्सन के लिए. हुम यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए. ये पर्सन जो कि सब्जेक्ट है, ये पर्सन जो कि ऑब्जेक्ट है. हु सब्जेक्ट में जो आ रहा है उसके लिए, whom ऑब्जेक्ट में जो आ रहा है उसके लिए. सी, who took the book, किसने बुक उठाई, तो यहां हम सब्जेक्ट के लिए. Now whose is she talking to, ध्यान देना यहां सब्जेक्ट क्या है? this is verb. वो किससे बात कर रही है? सब्जेक्ट क्या है? she. वर्ब क्या है? टॉकिंग. किससे बात कर रही है? तो यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत है. उसी ऑब्जेक्ट का आंसर ये whom ढूंढ रहा है. तो ऑब्जेक्ट के लिए जो यूज होगा वो है whom. नाउ नेक्स्ट whose, possessive. whose car है this, ये किसकी कार है? नाउ नेक्स्ट what चीजों के लिए जरूरत होता है. what do you want for lunch, तुम्हें लंच में क्या चाहिए? नाउ नेक्स्ट which, पर्सन और थिंग दोनों के लिए. which of them is the tallest, इन सब में से बड़ा कौन है? सी, जब भी हम विच इंट्रोगेटिव के लिए यूज कर रहे हैं तो वो पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज होगा. क्वेश्चन पूछने के लिए विच ऑफ देम इज द टॉलेस्ट, इन सब में से लंबा कौन है? विच कलर डू यू प्रेफर, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? तो ये सब, ये दोनों पर्सन के लिए भी और चीजों के लिए भी इंट्रोगेटिव में. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. Now these are the examples of interrogative pronoun. So my dear students, after relative pronoun, the next is indefinite pronoun. Indefinite, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, when the number and the identity of the subject is not specific. पता नहीं कौन है पर कोई तो है, कोई तो है, तो कोई एक. Now see, used for non-specific items. नॉन स्पेसिफिक आइटम, पता नहीं कौन है, स्पेसिफिक नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, कोई भी एक. अब इनके लिए वर्ड्स क्या यूज होंगे? एनीवन, समवन, ऑल, बोथ, ईच. अब ये सारे ऑल और बोथ प्लूरल के लिए, एनीवन, समवन सिंगुलर के लिए. ना ईच भी बहुतों में से एक, फ्यू मीन्स थोड़े से. बट यहां हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे, हमें कौन चाहिए. एनी वन ऑफ यू कम हियर, कोई भी एक आ जाओ. फ्यू बॉयज कम हियर, मतलब कुछ लड़के यहाँ आ जाओ. फ्यू थिंग्स आर लेफ्ट, कुछ चीजें बची हैं. तो ये तब यूज होता है जब हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता और एग्जैक्ट चीजें नहीं पता या एग्जैक्ट लोग नहीं पता. फॉर एग्जाम्पल, समवन विल हेल्प मी, आई होप समवन विल हेल्प मी. समवन मीन्स कौन? कोई भी, कोई भी. तो someone indefinite. Now some people are born great. Some people, हमने नाम नहीं लिखा पर कुछ लोग, कुछ. someone means कोई भी एक, some means कुछ. दोनों सेंटेंस में क्लियर नहीं पता हम किसकी बात कर रहे हैं. यहां पर आप few भी लिख सकते हो, यहां पर आप many भी लिख सकते हो. ये सब एग्जाम्पल है इंडेफिनेट प्रोनाउंस के. ना और देखते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन. नाउ सी, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडेफिनेट प्रोनाउंस. अनदर, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, आइदर. एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, मच, नाइदर, नोबडी. नो वन, नथिंग, वन, समबडी, समवन, समथिंग. ये सारे यूज होंगे सिंगुलर में. प्लूरल के लिए क्या यूज होगा बेटा? बोथ, फ्यू, मेनी, अदर्स, सेवरल.
ये सारे यूज होंगे प्लूरल के लिए। नाउ ऑल, एनी, मोस्ट, नन एंड सम, ये सिंगुलर के लिए भी यूज होंगे, प्लूरल के लिए भी यूज होंगे। और कैसे यूज होंगे वो हम सेंटेंसेस में करेंगे। नाउ सी, ये सिंगुलर और वो प्लूरल। नाउ वो सारे प्लूरल और सिंगुलर दोनों में, ये सिंगुलर और ये प्लूरल। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, सी दिस लिटिल, मच, ये यूज होंगे अनकाउंटेबल के लिए। प्लीज गिव मी लिटिल शुगर। लिटिल शुगर मतलब थोड़ी सी शक्कर। अब गिन के नहीं, प्लीज गिव मी लिटिल शुगर। अगर मच यूज करना है, आई हैव मच वाटर इन माई बॉटल, मेरे पास बॉटल में बहुत पानी है। तो दीज टू वर्ड्स फॉर अनकाउंटेबल्स। रिमेंबर हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन किया था, तो दीज आर अनकाउंटेबल। नाउ सी, एवरीवन सिट डाउन, एवरीथिंग इज ऑन द प्लेस। अब मैं यहां पर नाम नहीं ले रही हूं, पर यहां सब चीजें। ओके, नाउ सिंगुलर प्लूरल में ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, ये सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। Now comes the next reciprocal pronoun, very interesting pronoun. Now reciprocal means reciprocal, one another or each other. अब see, each other use कब होगा? जब दो लोग हैं, one और two, याद रखना। one another use होगा जब दो से ज्यादा लोग हैं, ये ट्रिक याद रखना। Now we use reciprocals when two or more people do the same thing, दोनों एक जैसी चीजें कर रहे हैं, जो मैं कर रही हूं वही सामने वाला कर रहा है, गिव एंड टेक है। गिव एंड टेक वाला जब रिलेशन आएगा तब रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रदर एंड सिस्टर लव ईच अदर। कितने लोग हैं दोनों? दो, ब्रदर एंड सिस्टर। ईच अदर, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। द कपल लव ईच अदर, दैट मीन्स कपल कितने लोग हैं? दो। ईच अदर, गिव एंड टेक, एक दूसरे से। तो ईच अदर मीन्स एक दूसरे से। मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बने हैं। याद रखने वाली बात है, जब दो लोग होंगे तब यूज होगा ईच अदर, जब दो से ज्यादा लोग होंगे तो यूज होगा वन अनदर। द मेंबर्स इन द फैमिली हेल्प वन अनदर, फैमिली के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। अब वन अनदर यूज है मतलब दो से ज्यादा है, ईच अदर यूज है मतलब दो लोग हैं। पर ये यूज कब होगा? जब आपस में लेन देन का मामला होगा। दे हेल्प वन अनदर मतलब मैं अगर हेल्प कर रही हूं तो सामने वाला भी मेरी हेल्प कर रहा है। दैट मीन्स जब सेम थिंग का लेन देन हो रहा है। The couple love each other. Two girls love each other. तो जो ये कर रही है रिटर्न में वो वापस भी वही दे रही है, सेम थिंग। ओके, नाउ सी, माई डॉग एंड कैट लव ईच अदर। कितने लोग हैं? कितनी आइडेंटिटीज हैं? दो। जब दो हैं तो ईच अदर, दो से ज्यादा हैं तो वन अनदर, याद रखना। दे ऑल सपोर्ट वन अनदर। अब दे हैं मतलब तीन हैं, चेक आउट दिस, 1 2 3। अभी जरूरी नहीं कि सिर्फ तीन ही होंगे, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो जब सिर्फ दो हैं तो ईच अदर, और दो से ज्यादा हैं तो वन अनदर। दो से ज्यादा कितने भी हों तो वन अनदर यूज होगा, और सिर्फ दो होंगे तो ईच अदर यूज होगा। एरर आएगा कैसे? अगर मैं आपको सेंटेंस दूं, द कपल लव वन अनदर, व्हाट इज द एरर? कपल मीन्स दो लोग, दो लोगों के लिए ईच अदर। ओके, टू बॉयज हेल्प ईच अदर, इज दिस करेक्ट? यस, क्योंकि दो लोग हैं। अगर मैं बोलूं टू बॉयज हेल्प वन अनदर तो रॉन्ग, क्योंकि टू बॉयज के लिए ईच अदर। ओके, नाउ सी रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के एग्जाम्पल। मैरी एंड जॉन। मैरी एंड जॉन कितने लोग हैं? मैरी, जॉन, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। दो लोग हैं
दो लोगों के लिए each other. Mary and John gave each other gold rings. दोनों ने एक दूसरे को सोने की अंगूठियां दी. एक ने दी, मैरी ने दी जॉन को, जॉन ने दी मैरी को. तो जब दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर तब यूज होगा जब टू पर्सन्स होंगे. ओके, वन मोर. राम एंड मीना वर टॉकिंग टू ईच अदर. कितने लोग हैं? राम, मीना क्या कर रहे हैं? आपस में बातचीत एक दूसरे से. राम मीना से और मीना राम से, तो इसलिए ईच अदर. वी गिव ईच अदर गिफ्ट्स ड्यूरिंग हॉलीडेज. चेक आउट दिस, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है ना. ईच अदर और यहाँ लिखा है वी. कितने लोग होंगे? अगर ईच अदर यूज है, अगर ईच अदर यूज है तो दो लोग ही होंगे. तो क्या दो लोगों के लिए हम वी यूज कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स. वी मतलब एक से ज्यादा, तो दो भी हो सकते हैं. तो वी गिव ईच अदर गिफ्ट ड्यूरिंग द हॉलीडेज. नाउ द स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर. दैट मीन्स दो से ज्यादा. अब यहाँ स्टूडेंट्स मतलब दो से ज्यादा. Now next, the kids spent afternoon kicking the ball to one another. One another use है मतलब दो से ज्यादा हैं. तो I hope you have understood reciprocal pronoun. हमने कर लिया है. Now here we end the types of pronoun. I hope you have understood all the types of pronoun in detail. Still if you have any of the doubt, just ask me for your doubt. Feel free to ask your doubts. I'll be helping you to clear your doubts and I'll be solving your queries. If you have any of the queries regarding the types of pronoun, just message me and I'm here to help you. Remember, no need to fear when Neetu ma'am is here. Okay? The next we will do the rules of pronoun. Till then, stay tuned. Thank you.